آج 16 محرم الحرام منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا، پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 16 محرم منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگے گے، رزق ملے گا، دولت مانگے گے، دولت ملے گی، شہرت مانگے گے، شہرت ملے گی۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے صرف 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا، اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے اور ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اسلامک سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم کا سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو تہہ باتہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا، اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتی ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے
साथ रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो रब की ज़ात भी आपकी हर हाजत को खुद ब खुद पूरा फरमाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए नाज़रीन, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, इसका मुकम्मल तरीक़ा कार समझ लें। आज 16 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सबसे बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। दरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिसको चाहिए जैसा चाहिए रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकसद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है कि ए अल्लाह, फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फ़लाँ हाजत के लिए, परेशानी के लिए, फ़लाँ मुसीबत से नजात के लिए। आपने अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अकाबरीन, औलिया कराम, सूफिया कराम का आज़मुदा अमल है। आप जो कहते हैं ना कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफ़ा भी सुन लीजिए और उसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले रब करीम को राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनहगार है, सियाहकार है, जाने अनजाने में बंदे से कोई ना कोई गलती कुताही हो जाती है और बंदा रब करीम की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफल पढ़ लें, रात को जाग लें, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ लें, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबरीन ने, सूफिया कराम, औलिया कराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सबसे पहले आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देती है। रब की वहदानियत का जिक्र करने वाले को रब पसंद फरमाता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास को दूसरे नंबर पर आपने सिर्फ 27 बार पढ़ना है। सूरत इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरत इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। इंशाअल्लाह सूरत इखलास को सिर्फ 27 बार पढ़ते दौरान अगर आप बे औलाद हैं, इंशाअल्लाह नरीना औलाद मिलेगी, बे औलादी का खात्मा यकीनी हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो आज 16 मुहर्रम मंगल के दिन 23 बार सूरत इखलास पढ़कर रब करीम से मांगे। अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगो, अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाएगा। आपने 27 बार सूरत इखलास पढ़ते ही आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम आज तक जिसने पढ़ा रब करीम ने उसको माला माल कर दिया। अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी करने के लिए बेहतरीन और ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ एक नाम या बासितु को पढ़ना है। या बासितु रब करीम का सिफाती नाम है। या बासिती को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, इंशाअल्लाह वो टूट जाएंगी। या बासितु रब करीम का एक ऐसा इस्म आज़म है कि वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, रब की ज़ात जानती है। या बासितु पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जो कई सालों से ना मिल सका। आज 16 मुहर्रम मंगल के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद से पढ़ते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। इस घर का हर फर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हर बीमारी से इंशाअल्लाह शफा पा लेगा, हर परेशानी से निजात पा लेगा। ये 3 अमाल पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। या बासितु एक बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतना ही दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा मुकम्मल करते ही सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफ़े भी गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है और जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार रब करीम से तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगिएगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, फिर रोते रोते हुए, तड़पते तड़पते हुए मांगिएगा, सिसकते हुए मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। आज 16 मुहर्रम मंगल के दिन का जो ख़ास वजीफ़ा मैंने आपको बताया है ये अकाबरीन का बताया हुआ है, बेहद आज़मुदा अमल है। अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा अल्लाह करीम ने हर इंसान को हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।